নমস্কাৰ 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি অসমত উপস্থিত হৈ ৰাজনাথ সিঙে বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়াইছে। বিজেপি চৰকাৰ যদি পুনৰ ক্ষমতালৈ আহে অসমত এটাও পকা ঘৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, কেঁচা ঘৰ এটাও নহব। এই বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু 400খন আসনেৰে এনডিএ তৰফৰ পৰা মোদীৰ নেতৃত্বত পুনৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব। কোকৰাঝাৰত বিজেপি ইউপিপিএল আৰু অগপৰ কৰ্মী সভাত উপস্থিত হৈ ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্য। আজিৰ দিনটোত দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী অসমত উপস্থিত হৈছে আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ দাবী পৰৱৰ্তী চৰকাৰ মোদীয়ে 400খন আসন দখলেৰে গঠন কৰিব। চৰকাৰ আহিলে অসমত এটাও কেঁচা ঘৰ নাথাকিব। এয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ জৰিয়তে অনাগত সময়ত বিশ্বৰ প্ৰথম দেশ হ'ব ভাৰতবৰ্ষ। অগপ বিজেপি ইউপিপিএল বুলি কোনো কথা নাই। মিত্ৰজোঁটৰ অধীনত অৰ্থাৎ এনডিএ হিচাপে আগন্তুক সময়ত নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। সকলো একত্ৰিত হৈ অসমৰ 14খন আসনত জয় নিশ্চিত কৰিব লাগিব বুলি এনেদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰতি অতি সদয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো উচ্চ প্ৰশংসা কৰিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। আজিৰ দিনটোত বৰপেটা আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ৰণডংকা বজাই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ ঘোষণা। 400খন আসন দখলেৰে এনডিএৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰে পুনৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিব। তেখেতে ঘোষণা আগবঢ়াইছে যদিহে বিজেপি চৰকাৰ পুনৰ কেন্দ্ৰত অধিষ্ঠিত হয় তেন্তে অসমত এটাও কেঁচা ঘৰ নাথাকিব। ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰে অনাগত সময়ত বিশ্বৰ প্ৰথম দেশ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ভাৰতবৰ্ষ। উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰতি সদয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। তেখেতৰ মন্তব্যটো আমি এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে আগবঢ়াইছো। हम सभी लोग एक परिवार के तरफ से एक फैमिली मेंबर हैं। एनडीए के हम सारे लोग फैमिली मेंबर हैं। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है तो एनडीए हमारा एक परिवार है और इस परिवार मानकर इस एनडीए को हम चलते हैं, एक फैमिली मानकर हम एनडीए को चलते हैं। चाहे हमारा इलेक्शन में कैंडिडेट किसी भी पार्टी का क्यों न हो, हम सभी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समगढ़ परिषद हो, यूपीपीएल हो, सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर हमें काम करने की जरूरत है और हमको फिर से 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करके केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। इस संकल्प के साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है। हम सारे लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें इस सच्चाई को समझना चाहिए कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। दूसरे राजनीतिक पार्टियों में और हम लोगों में सबसे बड़ा अंतर यही है, सरकार तो हम बनाते हैं लेकिन सरकार देश बनाने के लिए बनाते हैं और किसी के व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए सरकार हम नहीं बनाते। और इस काम को करके मोदी जी ने दिखा दिया। आपने देखा होगा कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का मस्तक, देश का सिर सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी, लेकिन आज भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह दुनिया में भारत की हैसियत बनी है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, हम सारे कार्यकर्ताओं को बड़े मन के साथ, चाहे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट क्यों ना हो, बड़े मन के साथ हम सबको काम करने की जरूरत है। अपना एक परिवार मानकर हम सबको काम करने की जरूरत है। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। यदि आप बड़ा बनना चाहते हो तो आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों से भी मैं
यही अपील करना चाहूंगा कि हम लोगों को बड़े मन से काम करने की जरूरत है। हम এনেদৰে আজিৰ দিনটোত কোকৰাঝাৰত ৰণডংকা বজাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। তেখেতে কৈছে বিজেপি চৰকাৰ পুনৰ আহিলে অসমত এটাও কেঁচা ঘৰ নাথাকিব। 400খন আসন দখলেৰে NDA চৰকাৰ গঠন কৰিব। UPPL অগপ বিজেপি বুলি কোনো কথা নাই, সকলো মিলি একত্ৰিতভাৱে অসমত ভাল প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব বিজেপি আৰু NDAৰ তৰফৰ পৰা। বৰপেটা আৰু কোকৰাঝাৰত উপস্থিত হৈ জনসভা সম্বোধন কৰি এনেদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। তেখেতে কৈছে যে ট্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰে অনাগত সময়ত বিশ্বৰ প্ৰথম দেশ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব আমাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ। তেখেতৰ মন্তব্যটো এই মুহূৰ্তত সম্ভৱ হ'লে পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছোঁ। हम सभी लोग एक परिवार के तरफ से एक फैमिली मेंबर हैं। एनडीए के हम सारे लोग फैमिली मेंबर हैं। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है तो एनडीए हमारा एक परिवार है और इस परिवार मानकर इस एनडीए को हम चलते हैं, एक फैमिली मानकर हम एनडीए को चलते हैं। चाहे हमारा इलेक्शन में कैंडिडेट किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, हम सभी को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, असम गण परिषद हो, यूपीपीएल हो, सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर हमें काम करने की जरूरत है और हमको फिर से 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करके केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। इस संकल्प के साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है। हम सारे लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन हमें इस सच्चाई को समझना चाहिए कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। दूसरे राजनीतिक पार्टियों में और हम लोगों में सबसे बड़ा अंतर यही है, सरकार तो हम बनाते हैं लेकिन सरकार देश बनाने के लिए बनाते हैं और किसी के व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए सरकार हम नहीं बनाते। और इस काम को करके मोदी जी ने दिखा दिया। आपने देखा होगा कि मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का मस्तक, देश का सिर सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को दुनिया गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी, लेकिन आज भारत यदि इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह दुनिया में भारत की हैसियत बनी है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, हम सारे कार्यकर्ताओं को बड़े मन के साथ, चाहे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट क्यों ना हो, बड़े मन के साथ हम सबको काम करने की जरूरत है। अपना एक परिवार मानकर हम सबको काम करने की जरूरत है। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। यदि आप बड़ा बनना चाहते हो तो आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों से भी मैं यही अपील करना चाहूंगा कि हम लोगों को बड़े मन से काम करने की जरूरत है।